So chapter 5, surface chemistry, is the chapter that we are doing, and in this case we have already covered the number of topics like adsorption, absorption. Similarly, we have already studied about the colloids. What are colloids, how they differ from true solutions, etc. Now, today we will discuss about the next topic of colloid, that is the properties of colloids. Properties of colloids. Properties means to say the characteristics, features of the colloids, you can say. What are the various characteristics of colloids because of which they are identified, you can say. So you can write the very first one. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, हम एक कैटेगराइज्ड वे से डिस्कस करेंगे. नंबर 1, फिजिकल प्रॉपर्टीज. Physical properties of colloids. And in physical properties we will discuss about their nature and filtrability, the simply. And regarding the nature, we have already discussed that colloids are heterogeneous mixtures in which dispersed phase and dispersion medium is present. That is, two basic components are there. One is dispersed phase and another one is dispersion medium. And these are the dispersed phase particles which give the characteristics, or you can say because of which the formation of colloids takes place. That is the particle size of the dispersed phase. You can simply, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ट्रू सोल्यूशंस की बात करते हैं, तो सोल्यूशंस के केस में हम किसकी बात करते हैं? पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट. अगर पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट लेस देन 1 नैनोमीटर रहता है, देन वी से दैट पर्टिकुलर मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, एज अ ट्रू सोल्यूशन. सिमिलरली इन केस ऑफ colloids, these are actually heterogeneous mixtures of 2 or more than 2 components, as we already discussed in the last lectures. There exist mainly 2 types of phases or 2 types of you can say component. One is dispersed phase and another one is dispersion medium. ठीक है जी. Dispersed phase particles या डिस्पर्स्ड फेज मीडियम जो रहता है आपका, डिस्पर्स्ड फेज जो रहता है वो एक करेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करवाता है टू द colloids. इफ द पार्टिकल साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज lies between 1 nanometer to 1000 nanometer, then they are regarded as colloids. If the particle size less than 1 nanometer, then they known as true solutions. And if the particle size becomes more than 1000 nanometer or almost 1000 nanometer also, then they are regarded as the suspensions. एक्चुअल में ये एक आप कह सकते हो ना, जैसे कॉन्टिन्यूस चेंज रहती है. सबसे पहले क्या है, इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या रहता है? ट्रू सॉल्यूशंस. जैसे जैसे ट्रू सॉल्यूशंस में पार्टिकल साइज इंक्रीज करेगा, जो ट्रू सॉल्यूशन की होमोजेनिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? डिमिनिश होती जाएगी और हेट्रोजीनियस नेचर एग्जिस्ट करती जाएगी. और एक स्टेज आएगी जब ट्रू सॉल्यूशन की जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी, कोलॉइड की प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज हेट्रोजीनियस नेचर स्टार्ट हो जाएगी. उसके बाद अगेन आफ्टर दैट पर्टिकुलर केस में जब पार्टिकल साइज एक्सट्रीमली हाई कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तो उस केस में हम उसको सस्पेंशन बोल जाते हैं. जब हमारे पास नेक्ड आई से जब हम पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम को इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं, तो वो सस्पेंशंस कहलाती है उस केस में. तो कहने का मतलब ये है कि physically colloids are heterogeneous mixtures of two phases. One is dispersed phase and another one is dispersion medium. Okay. In actual practice,
that is in our physical world, the colloids are seems to be like those of true solutions. We can't see the particles of the colloids with our naked eye. For example, milk or any other particular colloidal solution, ink solution, you can take the ink solution or paints, etc. Even jams and jellies, they are also colloids, but you can't see the particles of that particular component, that particular substance with our naked eye. Okay, but under the microscope their heterogeneity can be confirmed. माइक्रोस्कोप के थ्रू जब हम देखते हैं तो वहां पे ये पता चलता है कि पार्टिकल साइज ग्रेटर रहता है, दे आर विजिबल इन द माइक्रोस्कोप. जो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रहता है उसके विद रिस्पेक्ट टू हम उसको देख पाते हैं और वहीं से इसकी हेटेरोजेनिटी जो है वो कंफर्म होती है. लेकिन अगर वैसे देखोगे आप, फिजिकली देखोगे अपीयरेंस इनकी, तो वो ट्रू सोल्यूशन ही लगते हैं आपको. दे आर जस्ट लाइक ट्रू सोल्यूशंस. अगर जैसे हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे स्टार्च सोल्यूशन की, तो स्टार्च सोल्यूशन में स्टार्च पार्टिकल आप देख ही नहीं पाते हो वहां पे, that look like true solution only. But when that particular solution is observed under the electron microscope, then we can easily visualize the particles of the dispersed phase. ठीक है. The second one is stable nature. One is heterogeneous, that is heterogeneous in nature. Then second one is we call stable nature. Stable in the sense, stable means to say if the particular system containing colloid retains undisturbed or remains undisturbed for certain time, then the dispersed phase particle will not get settled down. जब हम सिस्टम कंटेनिंग कोलॉइड्स को थोड़ी देर के लिए रखते हैं, अनडिस्टर्ब रखते हैं, तो वहां पे जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन नहीं होंगे. ठीक है, वो एज इट इज बल्क फेज में प्रेजेंट रहेंगे उस केस में. दैट्स व्हाई वी से दे हैव स्टेबल नेचर. इनकी नेचर क्या रहती है? स्टेबल रहती है. देन नेक्स्ट इज फिल्ट्रेबिलिटी. फिल्ट्रेबिलिटी, so as we discussed in the earlier lecture that colloidal particles are so small that they can pass through ordinary filter papers. ये ordinary filter paper से pass out हो सकते हैं, हम इनको filter नहीं कर सकते by using ordinary papers, but by using ultra filter papers or by using some semi permeable membrane or particular type of membranes, they are filtrable. They are filtrable. Okay, next is, this is all about physical properties: heterogeneous nature, stable nature and filtrability. The second is colligative properties, that are that we already discussed in the unit second. Colligative properties. Colligative properties. These are the properties which the true solutions also show, which are also shown by the true solutions. ये true solution भी show करते हैं colligative property. क्या होती है colligative property? What do you mean by colligative property? The type of physical properties which depends upon the amount of the solute particles present in the solution. Okay, so colloidal solutions or colloidal salts also show the colligative properties. That is, the osmotic pressure of colloidal solutions, though smaller than those of true solution, is the only colligative property which has been determined with the reasonable degree of accuracy. Or you can say the colloidal particles being bigger aggregates and have very high molecular masses, so the number of particles per liter of the sol is relatively very small than in the true solution. Therefore, they show the colligative properties, but the values of the colligative properties obtained in case of colloids are very small as compared to those obtained in case of true solutions. Means to say they have very low colligative properties. And among all colligative properties, only the osmotic pressure of
colloidal solutions can be measured with a certain degree of accuracy. Otherwise, in other cases, another like depression in freezing point, elevation in boiling point, etc., colligative properties, they are negligible. Okay. So next one is mechanical properties. Mechanical properties, number third. Mechanical properties means to say, as we already discussed, that particles of the colloids, or you can say the colloids, are stable in nature. Okay, we've already discussed in the previous property, that is physical properties में हम लोगों ने डिस्कस किया कि colloids होते हैं, they are of stable nature होते हैं. अब स्टेबल नेचर क्यों होते हैं? क्योंकि वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा जो रहती है वो रहती है ब्राउनियन मूवमेंट. दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट. ब्राउनियन मूवमेंट. ओके, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है? जस्ट द जिग जैग मूवमेंट, स्ट्रेट लाइन पाथ में जो पार्टिकल्स मूव करते हैं इन द जिग जैग मैनर, दैट इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं इसको. इसको रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट, ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन. इन्होंने 1827 में इसको डिस्कस किया था. 1827 बाय रॉबर्ट ब्राउन. ओके, ये बॉटनिस्ट थे आपके. इन्होंने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी किया था. ओके, तो ये होता क्या है, जिग जैग मैनर में ये पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, जैसे इस तरह से स्ट्रेट लाइन मूवमेंट होगी बट इन द जिग जैग मैनर. ये होती है आपकी ब्राउनियन मूवमेंट. तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन पाथ बट continuous, they continuously change their path after certain distance. थोड़ी थोड़ी दूरी बाद वो पाथ, जैसे यानी कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे ही वो एक दूसरे के स्ट्राइक करते हैं वहां से अपना पाथ क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं. ठीक है जी, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, डेविएट फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ. और यही जो जिग जैग टाइप मूवमेंट होती है इसी को हम नाम दे देते हैं क्या? ब्राउनियन मूवमेंट. ये रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने 1827 में इन्होंने इसको डिस्कस किया था. बाय द पोलन ग्रेन सस्पेंडेड इन वाटर. ठीक है, व्हेन पोलन ग्रेन सस्पेंडेड इन वाटर दे रिमेन्स इन कंटिन्यूस मोशन. वो मूवमेंट करते रहते हैं, उसके विद रिस्पेक्ट टू इन्होंने स्टडी किया था. ठीक है जी. कॉज क्या रहता है? जैसा कि मैंने बताया ही है, द कंटिन्यूस कोलिजन्स among the particles of the colloids. जो colloidal particles होते हैं वो continuously आपस में क्या करते रहते हैं? collide करते रहते हैं, टकराते रहते हैं. टकराने से क्या होगा? एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है उन केसेस में. ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी तो कंजर्व ही रहती है, ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे के क्या करते हैं? एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट जो रहती है वो कंटिन्यूस रहती है. ओके, इस तरह से हम लोग इसको ट्राई करते हैं. दैट इज कहने का मतलब simply the collisions among the colloidal particle is the basic cause for Brownian movement. इस तरह से आप देख सकते हो, इसको लिख सकते हो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है. इनको डिस्कस किया था 1863 में बाय विनर. विनर साइंटिस्ट थे ये, WIENER, 1863. ठीक है, इन्होंने इसको डिस्कस किया था. इन्होंने एक जनरलाइजेशन दी थी that the impacts of dispersion medium particles are unequal which cause the zigzag motion of the dispersed phase particles. ठीक है जी. ओके, एक पर्टिकुलर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से स्ट्राइक करता है और वहीं से उसका पाथ चेंज हो जाता है, एंड दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस गोज ऑन टेकिंग प्लेस थ्रूआउट द सिस्टम बिकॉज ऑफ विच द colloidal particles remains in motion always. Okay, this is the Brownian movement and its cause. अब
सस्पेंशन के केस में ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि सस्पेंशन के केस में पार्टिकल साइज जो रहता है वो बिगर देन दोज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स रहता है, ठीक है जी, और उसकी वजह से देयर एग्जिस्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट नहीं कर सकते उस केस में, ग्रेविटी फैक्टर उनके ऊपर एक्ट करके वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, मास हाई रहता है उन केसेस, उस केसेस में, ठीक है जी। Suspensions do not show any type of movement, any such type of movement that is Brownian movement, ठीक है, ड्यू टू किसकी वजह से? लार्ज मॉलिक्यूलर साइज एंड मास आल्सो। नेक्स्ट इज जो ब्राउनियन मूवमेंट होती है, इसी वजह से ये एक तरह से ब्राउनियन मूवमेंट में जब हम फर्दर डिस्कशन करते हैं वहां से कुछ आप कॉन्सिक्वेंसेज आप कह सकते हो ये प्रोड्यूस होते हैं। तो ब्राउनियन मूवमेंट प्रोवाइड्स डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द सीजलेस मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, सीजलेस मोशन, बिना रुके हुए मूवमेंट शो करना, उसको बोलते हैं सीजलेस मोशन। तो सीजलेस मोशन ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल जो रहती है वो किसकी वजह से रहती है? ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से रहती है। जस्ट लाइक दोज ऑफ गैसेस, जैसे गैसेस के केस में भी क्या होती है, गैसेस पार्टिकल आपस में स्ट्राइक करते रहते हैं, वहां पे भी ब्राउनियन मूवमेंट जो वो टेक्स प्लेस करती है। यही कारण है कि वहां पे भी गैसेस पार्टिकल भी जाते हैं, वो भी सीजलेस मोशन परफॉर्म करते हैं वहां पे उस केस में। सो सिमिलरली ब्राउनियन मूवमेंट एक्सप्लेन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी acting on colloidal particles, that helps in providing stability of the colloidal soles by not allowing them to settle down। मतलब मूवमेंट ज्यादा होती है और ग्रेविटी फैक्टर वहां पे क्या कर जाता है? डिमिनिश हो जाता है एक तरह से, मतलब मूवमेंट डोमिनेट कर जाती है ओवर द ग्रेविटी फैक्टर। कहने का मतलब है ड्यू टू किसकी वजह से? ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से। और यही बताया कि वहां पे कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या रहते हैं, मतलब कोलॉइडल सोल्स क्या रहते हैं? स्टेबलाइज रहते हैं उसके। सिमिलरली दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट आल्सो हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ द पर्टिकुलर कोलॉइडल सोल। ये भी यहीं पे आ जाता है उसके। नेक्स्ट इज, इसी में आ जाती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में डिफ्यूजन एंड सेडिमेंटेशन। डिफ्यूजन एंड सेडिमेंटेशन, diffusion and sedimentation। diffusion, sedimentation। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स डिफ्यूज करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है जी, बट ड्यू टू लिटिल बिट बिगर साइज ऑफ द पार्टिकल्स देन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस, the diffusion process is slower than that in case of true solutions। जो diffusion रहती है इस केस में वो slower रहती है as compared to that of a true solution because of the bigger particle size than those of the solutions। sedimentation की बात करें, colloidal particles settle down under the influence of gravity at a very very slow rate, ठीक है। ग्रेविटी फैक्टर जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया ही है कि ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से ग्रेविटी फैक्टर क्या हो जाता है? नलीफाई हो जाता है उस केस में। लेकिन अगर थोड़ा बहुत एक्ट करता भी है, जैसे पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर हम बात कर रहे हैं, तो जो ग्रेटर साइज पार्टिकल्स रहेंगे उनके ऊपर ग्रेविटी फैक्टर थोड़ा बहुत एक्ट कर सकता है, बट वो भी वेरी वेरी निग्लिजिबल, बहुत ही स्लो रेट में वो क्या करते हैं? सेडिमेंट होते हैं उसके में। सेडिमेंटेशन में बहुत ज्यादा स्लो होती है, ठीक है जी। और इस केस में हम लोग जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनके मॉलिक्यूलर मासेस को डिटरमिन करने के लिए इस सेडिमेंटेशन प्रोसेस का यूटिलाइजेशन करते हैं हम लोग, जो सेडिमेंटेशन फिनोमेना होता है। सो दिस इज अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ colloids। फोर्थ वन इज optical properties। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में बेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहता है, वन एंड ओनली, दैट इज टिंडल इफेक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिंडल इफेक्ट। आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। टिंडल इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है? टिंडल इफेक्ट इज सिंपली द स्कैटरिंग ऑफ लाइट
by the particles, okay, by the particles of a particular system. Scattering of light. Scattering of light means to say when light fall on a particular system. जैसे कोई ये आपके पास सॉल्यूशन है, यहाँ पे मान लीजिए पार्टिकल्स है, इसमें इस तरह से पार्टिकल प्रेजेंट है, आप यहाँ से लाइट पास आउट करवा रहे हो इस तरह से, ठीक है जी। अब होगा क्या, जैसे ही लाइट यहाँ पे इनके पास ये पार्टिकल्स के ऊपर स्ट्राइक करेगी, यहाँ पे क्या होगा, स्कैटरिंग होगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगी। और इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट से क्या होगा, पाथ ऑफ लाइट विजुअलाइज हो जाएगा, पाथ ऑफ लाइट विजुअलाइज हो जाएगा। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज Tyndall effect. Okay beta, so that is when a strong beam of light is passed through a true solution placed in a beaker in dark room, the path of light does not become visible. ट्रू सोल्यूशन के केस में जब हम मान लीजिए आप डार्क रूम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये डार्क रूम एक्सपेरिमेंट होता है टिंडल इफेक्ट का सिंपली, जब हम ट्रू सोल्यूशन में से पास आउट करवाएंगे तो वहां पे पाथ ऑफ लाइट विल नॉट बी विजुअलाइज, आपको वहां पे पाथ ऑफ लाइट विजुअलाइज नहीं होगा उस केस में, ठीक है। लेकिन अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन में से हम लोग पास आउट करवाते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन में से अगर लाइट को पास आउट करवाते हैं तो वहां पे एक टिंडल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ टिंडल कोन बोलते हैं हम उसको। मतलब वहां पे एक तरह से इस तरह से आप हम लोग इसको देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपके पास सिस्टम है, ठीक है, इसमें आप लोगों ने ये सॉल्यूशन लिया हुआ है सारा, कोलॉइडल सोल, ये कोलॉइडल सोल है, ठीक है जी। ओके, यहां से आपने लाइट को पास आउट करवाया, तो जैसे ही लाइट पास आउट होगी यहां पे क्या होगा, इस तरह से ये फॉर्मेशन होगी, क्लियर, इस तरह से ये ऐसे कोन टाइप बनता है यहाँ पे, यहाँ से हम इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये जो बनी ना दिस वन, ये बनती है आपकी टिंडल कोन, टिंडल कोन, दिस वन व्हेन पर्टिकुलर लाइट जो है वो पास आउट करवाई गई है यहाँ से। जब लाइट को पास आउट करवाएगा उसके ऊपर सॉल्यूशन के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया उसको, उस केस में हमारे पास इस तरह से ऑब्जर्वेशन होगी, ये टिंडल कॉन कहलाती है। और ये किस केस में, कोलॉइडल पार्टिकल्स के केस में, ठीक है, विच कैन बी विजुअलाइज बाय द माइक्रोस्कोप। इसको माइक्रोस्कोप के विद रिस्पेक्ट टू हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है, पाथ इल्यूमिनेशन हो जाती है। वैसे भी टिंडल इफेक्ट को अगर इजीली हम लोगों ने करना है तो चलो कोलॉइडल सोल्स के कोलॉइडल सोल के केस में होता है, लेकिन वैसे अगर टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व करना है तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग जब सनराइज करता है, तो अगर हम किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, तो एट द अर्ली मॉर्निंग जब वहाँ से सूर्य की किरणें, द रेडिएशंस ऑफ द सन रेज हैं वो पास करती हैं, ठीक है, और द प्लांट्स को में से जब पास होके आती हैं तो वहाँ पे पाथ ऑफ लाइट हमें एग्जैक्टली दिखाई देता है, वो और कुछ नहीं, दैट इज टिंडल इफेक्ट होता है। एंड दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट रेडिएशंस by the dust particles of the or the water droplets present in the, you can say, air. Okay, इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स। जो कोलॉइडल सोल्स होते हैं दे शो द टिंडल इफेक्ट, कहने का मतलब ये है ओवरऑल। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व किया गया था बाय फ्राडे, और लेटर ऑन स्टडीज में टिंडल ने इनको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दी थी, ठीक है जी, इसलिए इसको बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। ओके, और टिंडल इफेक्ट जो है वो हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम को कंफर्म करता है। जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं दे डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट।
ओके, बट आपके जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं दे शो टिंडल इफेक्ट, बिकॉज हेट्रोजीनियस केसेस में द पार्टिकल साइज इज एनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन देम। ओके बेटा, इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द टिंडल इफेक्ट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस की बात करें तो एक साइंटिस्ट थे जिगमंडी, ठीक है, ZSIGMONDY, जिगमंडी, इन 1913 इन्होंने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू टिंडल इफेक्ट को रिकॉग्नाइज किया था, नोटिस किया था। इनमें इन्होंने इंटेंस बीम ऑफ लाइट को फोकस किया ऑन द कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है, कंटेन्ड इन अ ग्लास वेसल, एंड देन द फोकस ऑफ लाइट इज देन व्यूड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया उसी तरह से, एट राइट एंगल्स टू द बीम, एंड ऑब्जर्व दैट इंडिविजुअल कोलॉइडल पार्टिकल्स appears as spot of white light or spot of bright light, you can say, against a dark background, ठीक है जी। सो उस केस में इस तरह से इसको स्टडी किया गया था बाय जिगमंडी। तो इसमें आपके पास कलर फॉर्मेशन, जो कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस होता है वो एक्चुअली वेवलेंथ ऑफ लाइट रेडिएशन दैट गेट्स स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल्स, कोलॉइडल पार्टिकल, उसके ऊपर डिपेंड करता है, मींस अगेन टिंडल इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा ये, ठीक है जी। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ये तो हो गया आपका, दैट इज जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी टिंडल इफेक्ट, ठीक है, एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस, और उसके बाद उसका कलर। तो कलर भी एक तरह से उस जो कोलॉइडल पार्टिकल्स, जो कोलॉइडल्स का कलर होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशंस का जो कलर होता है, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द wavelength of the light scattered by the dispersed particles, that is dispersed phase particles जिस wavelength of light को scatter करेंगे उसके corresponding color जो है वो produce हो जाएगा। तो color of the colloidal solutions also changes with the manner in which the observer receives the light, ये भी depend करता है कि हम कैसे देख रहे हैं उसको, ठीक है जी, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। जैसे मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर है, दैट अपीयर्स ब्लू व्हेन व्यूड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट, जब हम मिल्क को रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू व्यू करते हैं तो हमें वो ब्लू दिखाई देता है, कलर ऑफ द मिल्क जो होता है, दैट इज टिंडल इफेक्ट। उस केस में ब्लू कलर्ड कोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है। लेकिन अगर ट्रांसमिटेड लाइट के केस में हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ट्रांसमिटेड लाइट के केस में, तो वहां पे फिर वो रेड हो जाती है, तो रेड कलर ऑब्टेन्ड होता है उस केस में, ठीक है जी। इसी तरह से गोल्ड सोल जो है दैट इज रेड इन कलर व्हेन पार्टिकल्स आर फाइन, ठीक है, बट एज द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस द कलर चेंजेस टू पर्पल, देन ब्लू एंड फाइनली गोल्डन। मतलब आप ये कह सकते हो कि गोल्ड का जो गोल्डन कलर है वो पार्टिकल साइज की वजह से होता है। जब पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है तब जाकर वो ये फॉर्मेशन होती है जो गोल्डन कलर होता है। सो दिस इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एंड कलर फॉर्मेशन ऑफ द कॉलॉइड्स। द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो कॉलॉइडल पार्टिकल शो द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, और इसके पीछे जो कंसेप्ट रहता है, इसके पीछे जो कॉज रहता है, दैट इज चार्ज प्रेजेंट इन द कोलॉइडल पार्टिकल्स, ठीक है जी, चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स। ये चार्ज किस वजह से प्रोड्यूस होता है? ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन, ठीक है, जब हम उनको बनाते हैं उस समय, एंड व्हेन दे गेट्स अ स्ट्राइक विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, उस केस में, और सेकेंडली व्हेन वी ऐड सर्टेन टाइप ऑफ स्टेबलाइजिंग एजेंट्स in that particular colloidal solution, then the colloidal solution attains a particular charge, that is colloidal soles जो होते हैं वो electrical properties show करते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, that is electrical properties of colloids के बारे में। ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा बड़ा भी है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।